ભારતના સૌથી મોટા ઝિંક સલ્ફેટ મોનોહાઇડ્રેટ સંયંત્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇફકોના પ્રબંધ નિર્દેશક માનનીય શ્રી ડૉક્ટર ઉદયશંકર અવસ્થીના હસ્તે તારીખ 1 માર્ચ 2012ના રોજ ઝિંક સલ્ફેટ સંયંત્ર કંડલા ખાતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંયંત્રની રોજની ખાતર બનાવવાની ક્ષમતા 100 મેટ્રિક ટન પ્રતિ દિવસ અને 30,000 મેટ્રિક ટન વાર્ષિક છે, જે ભારત ખાતે ઝિંક સલ્ફેટના ઉત્પાદનનું મોટામાં મોટું સંયંત્ર છે. કંડલા ખાતે આ ખાતરનું ઉત્પાદન થવાથી અને ખેડૂતો દ્વારા આ ખાતરનો વપરાશ કરવાથી ભારતની ઘણખરી જમીનમાં સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો જેવા કે ઝિંક, જેની ઉણપ જણાય છે, તેને વધારવામાં મદદરૂપ થશે તથા ભારતના ખેડૂતોનું જીવન ધોરણ ઉત્પાદકતા વધતા ઊંચું આવશે. ઇફકોએ આ ઉણપ અગાઉ પણ ઘણા નવા સંશોધિત ઉત્પાદનો જેવા કે કલોલ ખાતે નીમ કોટેડ યુરિયા અને કંડલા ખાતે યુરિયા ફોરેસ્ટ્રીનું ઉત્પાદન શરૂ કરેલ. ભારતની અંદાજિત 50% જમીનમાં ઝિંક તત્વની ઉણપ છે, જેના લીધે પાકના ઉત્પાદનમાં અને પોષકતામાં ઘટાડો થવાની પ્રક્રિયામાં જવાબદાર છે. તેમજ દુનિયાની વસ્તીમાં લગભગ 50% લોકોમાં પણ ઝિંક તત્વની ઉણપ જણાય છે. જમીનમાં ઝિંકનું પ્રમાણ માફકસર કરવાથી કૃષિ ઉત્પાદન અને પોષકતામાં વધારો કરી શકીએ છીએ, જેના લીધે ખેડૂતો વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. તેમજ ઉત્પાદિત અનાજના વપરાશ કરવાથી લોકોમાં ઝિંક જેવા પોષક તત્વોની ઉણપ દૂર થઈ શકે છે. ઝિંક જેવા પોષક તત્વોની ઉણપ ભારતમાં ફેલાઈ રહી છે, જેની ખામી આ ખાતર વપરાશથી દૂર થશે. તેમજ ઘઉં અને ચોખા જેવા મુખ્ય પાકોનું ઉત્પાદન વધારી શકીશું, જે આપણા દેશોનો મુખ્ય ખોરાક છે. ઝિંકના વપરાશથી ઉત્પાદનમાં 20 થી 25% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. ઝિંક સલ્ફેટ ખાતરને પાયામાં નાખવા કરતાં એનો છંટકાવ કરવામાં આવે તો તેનાથી વધારે લાભ મળી શકે. तो हमारे एनपीके और एएपी इनके प्राइस को हम लोग बढ़ लेंगे, विल मेंटेन प्राइस. So what we are planning to do is that we will be able to buy this year phosphatic fertilizer or phosphatic raw material at comparatively cheaper prices. That we expect in international market. Why it is so is also that last year there was quite a stress on availability of phosphatic fertilizer worldwide. But this year, because of our lower consumption of phosphatic and potassic fertilizer, for example, there is a lesser demand in India. इंटरेस्ट तो सब लोग, आप लोग गुजरात के लोग हैं, आपको इंटरेस्ट करने को बहुत अच्छा आइडिया है. वो बेचारे लेग वर्क कर रहे होंगे. तो ऐसा है, ये सब कहीं न कहीं होता रहता है. वहाँ सरकार का काम सबको पकड़ खत्म करना उनका. लेकिन जहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जैसे यूरिया है. अब यूरिया में देखिए, आप खरीदते हैं जब इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में प्रोडक्शन होता है तो उसकी वैल्यू है करीबन, खुद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने कि एवरेज यूरिया की प्राइस है 13,000 रुपये. हालांकि कोई प्राइस खाली 10,000 रुपये है एवरेज, लेकिन नैपथा का सबको ले लिए 13,000 और इम्पोर्टेड की प्राइस है 20,000 रुपये और आप बेचते हैं 5,000 रुपये. तो एवरेज 13 और 20 का एवरेज ले लीजिए, तभी 18,000 रुपये. आपने 5,000 रुपये बेचा, 13,000 रुपये पर टन हुआ. तो यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक भी आप ले जाते हो, तब भी आपको 4-5,000 रुपये पर टन बचेगा. तो एक घाव में 5,000-2,000 टन ले गया, कितना बचा? वो तो लीगल चैनल से एक्सपोर्ट हो रहा है इन द नेम ऑफ सॉल्ट, वो सब करने की जरूरत नहीं है. कोई ऑफिशियली पैकिंग इज इंडियन सॉल्ट नहीं है. इसमें एक ही चीज इन्वेस्टिगेटिंग सॉ इसको जो जितने सप्लाईज होते हैं एज पर रेकमेंडेड कोटा, दे ऑल गो थ्रू एट द परचेज. अदर कंपनीज में कोई रेगुलेशन नहीं है. नहीं, रेगुलेशन तो हर एक जगह है. देखिए
क्या होता है कि जैसे यहाँ से मटेरियल बना, अब मान लीजिए हमने सोसाइटी को राजकोट में दिया, पोरबंदर में दिया, विशाखापट्टनम में दिया, कहीं प्रोडक्ट दिया, जहाँ जहाँ हमको बोला जाता है, भारत सरकार जहाँ जहाँ को दिया आपको यहाँ याद नहीं। तो पहले तो हमको एलोकेट करते हैं एक स्टेट, क्या आंध्र प्रदेश में 50,000 60,000, फिर आंध्र प्रदेश में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर वो बताते हैं कि विशाखापट्टनम में देंगे, कि खम्बम में देंगे, ऐसे गुजरात में मुझे बोलेंगे राजकोट में देंगे, कि अहमदाबाद में देंगे, गांधीनगर में देंगे, कि आप सौराष्ट्र में देंगे, कि आप सूरत में देंगे। तो वो सब वो लोग बताते हैं, रेट पॉइंट्स फिक्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रेट पॉइंट्स वो लोग बताएंगे, उन रेट पॉइंट से अपना प्रोडक्ट भेजते हैं। जब हम प्रोडक्ट वहाँ भेजते हैं तो वो प्रोडक्ट वहाँ पर रिसीव हो जाता है। तो हम वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम है कि हम लोड करते हैं कि आज इस जगह पे यहाँ इतना मटेरियल पहुँचा, फिर हम वो मटेरियल डिफरेंट सोसाइटीज़ को एलोकेट करते हैं, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो होता है। अदरवाइज जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं इस काम करता है वहाँ हम लोग एलोकेट करते हैं। तो मान लिया हमने ये सहकारी मंडली 10-12 सहकारी मंडली हमने एक को नहीं, वो सहकारी मंडली में एलोकेट करते हैं। तो हम लोड करते हैं FMS में कि यहाँ मटेरियल आया, ये मंडली है वहाँ। अब वो मंडली उसके बाद जो इफको का सिस्टम है वो अपने मेंबर्स को यूजली उसको बेचना चाहिए। तो मेंबर को बेचता है, नॉन मेंबर्स को बेचता है, वो उसकी प्रॉब्लम। ये तो नॉन मेंबर्स को बेचता है तो मेंबर्स उसको एक्शन ले सकते हैं वो सोसाइटी। तो वहाँ लोड होता है, लोड होने के बाद हमें 85% कंसेशन मिलता है। तो 14,348 है तो उसका 85%। फिर जब ये सोसाइटी बेच देती है तो जब बेचने का हमें आ जाता है तो सेल होता है, उसने हमें पेमेंट कर दिया तो हमें फिर 15% करना है। उसके बाद वो कैसे ले जाता है, कहाँ ले जाता है, कैसे करता है, वो हम लोगों के अधिकार के बारे में। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ये 85% जो रिएम्बर्स होते हैं तो व्हाट स्टेज, जब स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नहीं, जब वहाँ जब जो या तो रिटेलर या सोसाइटी जब वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी गोडाउन में जब पहुँच जाता है ना, या हमारा बफर है जिस पे पहुँच जाएगा, तो मान लीजिए हमारी सोसाइटी नहीं उठा पा रही है तो हार्वेस्टिंग में हमारा बफर होता है। जब बफर पहुँचता है तो फिर बफर में लोड होता है, इतना होता है कि वो कुछ लिमिट है, उस लिमिट को ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है, वो कोई टाइम लिमिट मुझे याद नहीं है। अभी तो ना they don't know, lot of times that happen that they don't alert. What happened at that time when they don't authenticate notice? नहीं छोड़िए, पहले नहीं करते थे तो हम लोगों का साल 2 साल पड़ा रहता था। हम लोगों ने सो पे कर किया कि भाई आप अप्रूवल कराइए, वो भी गवर्नमेंट है, तो आप उससे सो कराइए ऑथेंटिकेशन, नहीं तो हमको आपको सो दे देंगे। आप इतने दिन में नहीं ऑथेंटिकेशन होगा तो एक भी कंसिडर रहता है। और बेस्ट तरीका ये है कि आप फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। हम लोग कहना है कि आप ये सब्सिडी और कंसेशन मैन्युफैक्चरर्स को मत दीजिए, आप फार्मर को सीधे दीजिए, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करिए एवरी सीजन पे, और उसके बाद ये इंडस्ट्री को आप इनको फ्री करिए। इसमें कंपटीशन होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको आप प्रोटेक्शन दीजिए ड्यूटी पर, नहीं, इसको आप फ्री मार्केट कर दिए, वर्ल्ड मार्केट से आप हम लोग कम्पीट करें। और फिर आप इसे कंपटीशन करा देंगे और फार्मर जो बेस्ट प्राइस और बेस्ट प्रोडक्ट उसको मिलेगा वो बाई करेगा। तो इतना सब कंपटीशन में हम आते हैं, वेयर वुड वी स्टैंड इन इंडिया? नो स्टैंड, वी विल स्टैंड एनीवेयर। प्रोडक्शन कैपेसिटी में
देखिए कंपटीशन होगा तो इंडिया कंपटीशन में इंडियन एंड इंडिया उनको कोई मार नहीं सकता। एक हम 1300 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें कि हमारा फाइनल क्लियरेंस जो है अब फॉरेस्ट की क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, तो भी आई बिलीव दैट कमेटी ऑफ एनवायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड दैट कोल ब्लॉक, तारा कोल ब्लॉक, जहाँ उसी बगल में 9 किलोमीटर दूर हमारा एक प्लांट लगा है। तो कोल हम कन्वेयर दे देंगे, कहते हैं तो हम पीके कोल बेस प्लांट है 1300 मेगावाट का, तो वो हम लगाने जा रहे हैं। बस हम ये फाइनल एक क्लियरेंस, फाइनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। लैंड हम अक्वायर कर चुके हैं। कितने साल की ऑपरेशन होगी? जब ये क्लियर करेंगे उसके बाद तो पिकअप नहीं, प्रोजेक्ट बड़ा लैंड देखिए हमारे पास आ चुकी है, खाली से क्लियर बाकी है, हमारी वो तैयार है, बिड तैयार है, किसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे कमिटेड है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन है, हमारा फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसिंग टाई करता है। पहले एक बार टेंडर इश्यू कर चुके हैं 5 साल पहले, जो 5 साल पहले वाला टेंडर पहले नहीं रखना चाहते हैं तो उसको हमने री इशू कर, तो री इशू करेंगे तो जिस दिन से हमको क्लियरेंस होगा उसके साल भर के अंदर क्या हम लोग को रोना नहीं आता है कि ये हो गया टेक्निकली एवरीथिंग इज फीजिबल। आपको जैसी क्वालिटी वैसा आप काम करने के लिए उसको यूज करिए। रोक हो रही है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत आदत है, रोने की बड़ी आदत है, और हम कोऑपरेटिव वालों को रोना नहीं आता है। आपको रोना भी दो पैसा नहीं पड़ेगा, ताकि ना सबसे इतने साथ वोट कोऑपरेटिव टोटली डेडिकेटेड और 2012 is International Year of Cooperation has been declared by United Nations. So इसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने और राज्यसभा ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट एक्सेंट दे दी है for new cooperative act where formation of cooperation has become a fundamental right. खाली इसकी डेट उनको जब more than 50% assemblies will give the assent. तो that law will become